My name is Dr. Fawad Farooq. I'm an associate professor interventional cardiologist at National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we're going to cover approach to ischemic heart disease at general practitioner level. So what we'll cover some of the basics of different clinical scenarios in which the ischemic heart disease patient present at a primary care level. Although we touch all the things, but we cover in detail acute coronary syndrome or evaluation of acute chest pain. We know that the spectrum is quite wide. You have a lot of things which are under the umbrella of IHD, starting from stable angina, silent ischemia, syndrome X, Prinzmetal angina, and these are the things which covers under stable IHD. Then we have acute coronary syndrome, which is unstable angina, non-ST elevation MI and ST elevation MI. Now before going into the details of these all, I would like to cover some of basics of pathophysiology behind these conditions. As we know that ischemic heart disease as such is an atherosclerotic cardiovascular disease which start as a stable plaque which progressively encroach the arterial lumen unless and until it's covering so much so of the lumen that's causing flow limitation. It really don't give you any symptom. And that's why a lot of patients are totally asymptomatic even with disease. But what happens? This plaque progressively increases. Now there are two fates. Either it go beyond a certain limit that it cause mismatch in demand and supply and lead to stable angina. Second is this plaque ruptures at any moment. Although in this figure you are seeing that this plaque is rupturing once it has encroached almost 70-80% of the arterial lumen. Usually, but commonly what happens, this plaque can rupture at any stage of the disease, which leads to all acute events. So these are the two pathophysiology behind the disease: a stable plaque which leads to angina, and an unstable plaque leads to acute coronary syndrome. And that's why we divide disease into two phases: atherosclerosis phase and atherothrombosis phase. This is a progressive phase which keeps on there and cause symptoms once it go beyond certain limit. But this atherothrombosis can cause event at any stage of the disease. These two things we need to understand. Now, in acute coronary syndrome, commonly patient present as a chest pain. Now for a general practitioner, he need to know how to evaluate a chest pain to decide whether he is dealing with acute coronary syndrome or something else. Now the common algorithm for chest pain which we see is that chest pain, acute coronary syndrome, and acute coronary syndrome consist of ST elevation, non-ST elevation and unstable angina. Now there are some misconception about this chest pain evaluation in acute coronary syndrome definition. Why? Because this is the algorithm of definite ACS. Now every patient who's coming to you with chest pain may not be having definite ACS. So there are a lot of things missing in this algorithm which you really need to know during your clinical evaluation. Now these three things we already discussed, but these are the three components of ACS when you are dealing with definite acute coronary syndrome. Now something about the ACS, how it happens and what is really causing it. As we already discussed, it's the plaque rupture. And then on plaque rupture you have a thrombus formation. There are three fates to this. Either it causes complete coronary occlusion which leads to acute ST elevation MI, spontaneous lysis, repair, wall remodeling. Patient may have some symptom and then patient becomes
asymptomatic. And in incomplete occlusion, you have unstable angina and non-ST elevation MI. Now it's very important to understand the relation of this pathophysiology with symptoms, ECGs and cardiac marker phases. That's very important to understand. Once you have a plaque rupture, now unless and until this plaque rupture, which is leading to thrombus formation, causes blood flow limitation, then you got symptom. Up till that limit, if it's not causing flow limitation, you may remain asymptomatic, even with plaque rupture. Then persistent occlusion lead to ECG changes. And then further, few hours after, if the process really goes on, then you got cardiac marker positivity. Now this phase, although we are displaying it that it's going towards this direction, but you can have to and fro movement of this algorithm. So a patient can have rupture plaque, he may have some symptoms, and then he have a recanalized vessel, so he then may remain asymptomatic for hours after that. That's the key to understand. कि आपका पेशेंट इस तरह से हो सकता है कि पेन उसको हो, पेन के बाद वो थोड़ी देर के लिए सिम्टोमेटिक रहे, कुछ घंटे, इवन कुछ मिनट्स, और फिर वो टोटली एसिम्टोमेटिक हो जाए, और इस हद तक एसिम्टोमेटिक हो जाए कि उसको कोई तकलीफ ना हो रही हो. Similarly, he may have typical symptom, but not the pathophysiology is not so that it hasn't caused so much limitation of flow to that much duration that it isn't causing ECG changes. So even with typical symptom, you can have no ECG changes or mild ECG changes. Similarly, cardiac markers, इनका जो टाइमिंग है ये डिफरेंट है, 6 से 12 घंटे बाद इवेंट के. तो इस पूरी चीज़ को समझना एक्यूट चेस्ट पेन एवेल्युएशन में बहुत ज़रूरी है. अब the treatment which we are offering in acute coronary syndrome, you have multiple modality of things you offer. Anti-ischemic, antiplatelets, anticoagulant, revascularization, reperfusion, then long-term prevention. अब हर ACS के पेशेंट को हम ये सारी चीज़ें तो नहीं देते. ये किस बुनियाद पे देते हैं? इस असेसमेंट के बाद कि what kind of ACS we are dealing, and that all depends on assessment from history, ECG and cardiac markers. And what we see when we are dealing with acute chest pain, which is the commonest ER presentation, cardiac etiology found in less than 1/3. Why I am telling this? Because अगर आप ACS के हर पेशेंट को वो 3 कैटेगरी ही कहते हैं, तो ये फिर नॉन कार्डियक कहाँ जाएंगे, जिनको आपने ACS के साथ एडमिट किया लेकिन उनको कार्डियक एटियोलॉजी नहीं फाउंड हुई उनमें. इसका मतलब है कि हमें बहुत ही प्रॉपरली असेस करना है पेशेंट्स को ड्यूरिंग देयर इनिशियल प्रेजेंटेशन, वेदर दे आर कार्डियक और नॉन कार्डियक. अब उसका तरीका क्या होगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अच्छा, इन स्पाइट ऑफ दैट लिबर्टी, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कार्डियक एटियोलॉजी फाउंड इन लेस देन 1/3, यानी यहाँ जो ये ER में लोगों को एवेलुएट करते हैं उसमें से 2/3 नॉन कार्डियक निकलते हैं, जबकि हमारे यहाँ हार्डली मेरे ख्याल है 5-10% ऐसे होते होंगे जो नॉन कार्डियक हम छोड़ दें, वरना तो सारे कार्डियक हैं. अच्छा, इस लिबर्टी के साथ 2% ऑफ पेशेंट विद एक्यूट MI आर अनरिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ED. कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये 2% लोगों को मिस कर देते हैं, और हमारे यहाँ अब आप सोचें कितने लोग मिस होते होंगे. इसका मतलब है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बाय डेफिनेशन इज नॉट दोज 3 थिंग्स. It's actually any constellation of clinical symptoms that are compatible with acute myocardial ischemia, usually but not always caused by atherosclerosis. यानी इसको समझने की बात यह है कि acute coronary syndrome उस पेशेंट को लेबल किया जाता है जिसमें आपको सिम्टम्स या साइंस से ये शुबा हो रहा है कि इस पेशेंट को एक्यूट इस्कीमिया हो सकता है. देन यू बस जस्ट लेबल देम एंड देन यू स्टार्ट एवेल्युएशन. और ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव एल्गोरिदम है कि आप चेस्ट पेन या सिम्टम ऑफ ACS, अब आप क्या करते हैं, फौरी तौर पे ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट डेफिनेट ACS है, पॉसिबल ACS है
या नॉन कार्डियक। यानी आपको हर पेशेंट जो एक्यूट चेस्ट पेन के साथ एवेलुएट आता है, उस सूरत में पहला फैसला ये करना है कि इन सिम्टम्स या ईसीजी चेंजेस या जो भी सामने आपके चीजें हैं उसकी बुनियाद पे ये डेफिनेट एसीएस है, पॉसिबल एसीएस है या नॉन कार्डियक है। और क्लिनिकली यही होता है। और सबसे डिफिकल्ट ये वाले पेशेंट होते हैं जो कि पॉसिबल एसीएस के पेशेंट्स हैं, जिनमें आपको खुद फर्दर अपनी इवैल्यूएशन से फैसला करना है कि वेदर दे टर्न आउट टू बी डेफिनेट और नॉन कार्डियक। भाई डेफिनेट एसीएस में तो इशू मैनेजमेंट होता है कि आपको सिम्टम से क्लियर अंदाजा हो जाता है, ईसीजी बता देती है, कार्डियक में आकर पॉजिटिव आ जाता है, आप सिर्फ उसको रेफर करते हैं फर्दर मैनेजमेंट के लिए। सबसे मुश्किल ये पेशेंट होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही होती हैं कि इस्केमिक है, कुछ कैरेक्टर्स लग रही होती हैं कि नॉन इस्केमिक हैं। और अब आप ये फैसला करना है, और जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे तो ये फैसला करना होता है सबसे पहला तो ये कि इसकी ईसीजी कराई जाए कि नहीं कराई जाए, पहला तो ये फैसला है। फिर ईसीजी के बाद क्या इसको किसी टर्शरी केयर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो इतनी असेसमेंट कम अज कम एक जनरल प्रैक्टिशनर को आनी चाहिए कि किस मरीज की ईसीजी लाजमी है और ईसीजी के बाद किस मरीज को टर्शरी केयर जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। वही हम आज डिस्कस करेंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पैथोफिजियोलॉजी को रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि स्टेबल यहां तक है और जब ये रप्चर हो जाता है ब्लैक तो ये अनस्टेबल बन जाता है पेशेंट। स्टेबल ये वो लोग हैं जो आपको अक्सर अपनी ओपीडीज में मिलते हैं, कई महीनों से सालों से इनको कुछ इस नौइयत के सिम्टम्स चल रहे होते हैं कि रेफर टू अ चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट अकर प्रिडिक्टेबली and reproducibly for a certain length of duration at certain level of exertion and is relief with rest or nitroglycerin। ये आपको मिलते हैं, इनके ये सिम्टम कभी बढ़ रहे होते हैं, कभी कम हो रहे होते हैं और ये दवाइयों पे बड़े आराम से चल रहे होते हैं। इनकी आर्टरीज में मल्टीपल जगहों पे ये स्टेबल प्लैक होते हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से, कभी डिमांड बढ़ जाने से या सप्लाई कम होने से, वेजोस्पैज्म और दूसरी चीज़ें एडिशनल होती हैं तो सिम्टम इनके ऊपर नीचे होते हैं, या कभी ये दवा छोड़ देते हैं या कोई एडिशनल चीज़ आ गई। ये वो टिपिकल स्टेबल एंजाइना का पेशेंट है जो साल साल से, लेकिन सर्टली इनके सिम्टम्स अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या रेस्टिंग सिम्टम इनको शुरू हो रहे हैं तो ये भी आप समझ लें कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको आप किसी फर्दर असेसमेंट की या स्पेशलिस्ट कंसल्ट की ज़रूरत है। अकर्स व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। अच्छा, एंजाइना में जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि बहुत से लोगों ने अपने आप को सेल्फ लेबल किया हुआ होता है। सिम्टम उनके टिपिकल ये नहीं होते जो अभी हमने बताए। ये क्या होता है, कभी पहले किसी डॉक्टर को दिखाया एंड दैट डॉक्टर हैव जस्ट सस्पेक्टेड दैट दीज सिम्टम्स मे बी एंजाइना, वो अपने साथ लेबल सारी जिंदगी के लगा देते हैं कि हमें एंजाइना है। एंजाइना ऐसी चीज नहीं है, ये क्लिनिकल सिम्टम है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले ही बता दी कि चलने पे या इमोशनल स्ट्रेस पे कोई चीज़ सीने में आए और रेस्ट से या नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो रही हो, ये चीज़ किसी को हो रही है तो एंजाइना कहलाती है। वरना एंजाइना कोई ऐसा लेबल नहीं है कि आप 5 साल पहले कभी NICVD में एडमिट हो गए तो अब आप सारी ज़िंदगी के लिए एंजाइना के मरीज कहलाएंगे। सो इसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। इन लोगों में अक्सर गैर ज़रूरी दवाइयाँ, नाइट्रेट्स और इस किस्म की बिला वजह चल रही होती हैं, सिम्टम भी नहीं है। नाइट्रेट्स आर ड्रग्स विच आर गिवन ओनली व्हेन यू हैव सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। इवन इन स्टेबल IHD यू स्टॉप नाइट्रेट वंस योर पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। तो इसको समझना भी जरूरी है। अब हम इस बैकग्राउंड के साथ केसेस पे आ जाते हैं कि केसेस को कवर करते हैं कि इस किस्म का मरीज अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे। And that commonly happens of a 45 years diabetic female with central chest burning, sweating and palpitation for last half an hour. ECG showed some changes and was referred to tertiary care center giving beta blocker and aspirin. अच्छा, ये एक्चुअली एक ऐसा केस है जो एक टर्शरी केयर का पेशेंट आदमी डील कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि समझ ले इस सिम्टम्स में देख ले तो आपके पास आया होगा सबसे पहले मरीज। सिम्टम्स क्या है, एक डायबिटिक फीमेल में सेंट्रल चेस्ट बर्निंग, इसका मतलब है एक रिस्क फैक्टर के साथ इवन चेस्ट बर्निंग भी हो रही है तो ECG होनी चाहिए। तो ये एक फैसला आपकी तरफ से था कि ECG हुई, ECG में कुछ चेंजेस आई, उसकी बुनियाद पे ये टर्शरी केयर रेफर हो गई है। अब ECG में क्या चेंजेस हैं, इसमें थोड़ी सी माइनर STT चेंजेस आपको नजर आ रही हैं। ECG को कैसे देखना होता है मैं भी आपको बताता हूं कुछ देर में। थोड़ा सा इसमें रेट कम है,
ब्रेडिकार्डिया है। तो ये दो चीज़ें उस प्राइमरी केयर फिजिशियन को नज़र आई तो इसने आगे इसको रेफ़र कर दिया और बुनियाद वही बनी कि उसने सिम्टम्स गो के जस्ट चेस्ट बर्निंग थी, लेकिन चूंकि रिस्क फैक्टर था डायबिटीज़ का, उसको कंसिडर करते हुए ईसीजी की। अब इसको हम कहाँ प्लेस करें इसमें? अब देखें ये एसीएस का ही पेशेंट है ना, किसी ने रेफर किया इसको एसीएस बना के, लेकिन ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये एल्गोरिदम, मेरा बताने का पिछला पूरा बैकग्राउंड यही था कि ये एल्गोरिदम हर एसीएस में फिट नहीं आएगा। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आपको इस एल्गोरिदम पे जाना पड़ेगा। इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि सिम्टम सजेस्टिव ऑफ एसीएस, तो अब आपने फैसला करना है कि ये डेफिनेट है, पॉसिबल है, स्टेबल एंजाइना है या नॉन डायग्नोस्टिक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिम्टम, ईसीजी और कार्डियक मार्कर की बुनियाद पे फाइनल डिसीजन यही करना होता है। ये चीजें आप इन 4 डिविजन्स को आप क्लिनिकली भी कर सकते हैं। मसलन ये जो फीमेल है, मेरे ख्याल में ये डेफिनेट नहीं कहलाएगी अभी, जब तक कि हमारे पास वर्कअप कंप्लीट ना हो जाए। सिमिलरली यही पेशेंट होती और इसको सीवियर क्रशिंग सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा होता, ईसीजी में एसटी एलिवेशन होती, तो राइट एक जीपी लेवल पे ही वो कह सकता था कि ये डेफिनेट एसीएस है और डेफिनेट एसीएस में भी एसटी एलिवेशन है हमारे। तो इस एसीएस की एवेल्युएशन को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई मरीज आए तो उसको पहले एवेल्युएट करना है। और अगेन मैं कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे मरीज होंगे जो ये पॉसिबल वाली कैटेगरी में होंगे। यहां आपका टेस्ट होगा कि पॉसिबल एसीएस को किस तरह डील करना है, फर्दर क्या किया जाए उनके लिए। अब क्या करना होता है, 3 फैक्टर्स पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरे लिहाज से इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हिस्ट्री है। हिस्ट्री, ईसीजी और टाइमली डन कार्डियक मार्कर। अच्छा, मार्कर के लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्टम होना जरूरी है, 3 से 6 घंटे कम से कम। इन पीक टाइम इज 12 to 18 आवर। तो ये अक्सर आपको एक्यूट सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होते। जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि ट्रॉप टी की किट कर दी, अगर नेगेटिव है तो मरीज को सेटिस्फाई कर दिया कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि 1-2 घंटे में तो वो ब्लड में ट्रॉप अभी आया ही नहीं है, तो उसकी नेगेटिविटी किसी तौर पे एक्सक्लूड नहीं कर सकती। इन 3 चीजों पे फोकस करना है, हिस्ट्री पे, ईसीजी की तो कुछ बेसिक टिप्स आई विल टेल यू टुडे, हाउ टू सी एटलीस्ट बेसिक स्कीमिया इन द ईसीजी। मार्कर्स की बात, ये तो ब्लड टेस्ट होते हैं। अच्छा, ईसीजी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हिस्ट्री लेनी है। टाइम ऑफ ऑनसेट, किस वक्त शुरू हुआ, कुछ लोगों को 2-3 दिन से चल रहा होता है प्रॉब्लम। अच्छा, इस किस्म का मामला हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ किस वक्त हुई, स्पेशली टाइम ऑफ सीवियरेस्ट एपिसोड, साइट एंड कैरेक्टर। और ये तमाम क्वेश्चन बहुत ही डिटेल ओपन एंडेड वे में होने चाहिए कि आप पेशेंट को पूरा मौका दें अपनी बात करने का, ताकि वो ये तमाम चीजें इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता सके। और टिपिकल क्या है, सबस्टर्नल, डीप, विसरल, इंटेंस, स्क्वीजिंग, heaviness or constriction. Sometimes some patient do say all these things as burning, कुछ जल रहा है अंदर, although they may be feeling heaviness or constriction. फिर रेडिएशन पूछनी है, कहाँ जा रहा है, ड्यूरेशन पूछना है कि एक एपिसोड अगर होता है तो वो कितने मिनट या घंटों तक जारी रहता है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हैं जो आपको गाइड करते हैं फॉर सेक ऑफ कॉम्प्लिकेशन। स्वेटिंग हो रही है, एसओबी हो रही है, पैल्पिटेशन, सिनकपी, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। अच्छा, अमूमन ये जो स्टेबल एंजाइना वाले एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर हैं ये एसीएस में नहीं मिलते, इसको समझना चाहिए। लोग समझते हैं शायद चलने पे होगा और रुकने पे ठीक हो जाएगा। अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी जिक्र की, एसीएस की पैथोफिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। इसमें यह मुमकिन है कि रात को एक आदमी को मिड ऑफ द नाइट में सीवियर रेस्टिंग 15-20 मिनट का पेन हो और नेक्स्ट डे वो चले फिरे। वो प्लैक को याद रखिए, प्लैक ने ऑक्यूपाई किया और फिर वापस चला गया। अब वो नेक्स्ट डे पूरा ऑफिस भी जाएगा, सब कुछ करेगा, चले फिरेगा, आपके पास आएगा और उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अब इसमें इस एसीएस को पिक करने का वाहिद तरीका क्या होगा, सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, कि रात को जो एपिसोड हुआ वो सिम्टम्स की नौयत क्या थी। अगर वो टिपिकल स्किमिक टाइप हैं तो बेशक ये मरीज चल फिर रहा है फिर भी चलेगा। देन हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ नॉन स्किमिक, ये वो कुछ क्यू पॉइंट्स हैं जो बहुत डोमिनेंट हो हिस्ट्री में। तो इसका मतलब है
के पेशेंट को नॉन कार्डियक है। वो क्या है? प्लूरिटिक टाइप, शार्प, नाइफ लाइक, एग्रीवेटेड विद रेस्पिरेशन और कफ, एक टिप ऑफ द फिंगर से लोकलाइज। लेकिन ये याद रखिएगा, ये वो है कि जो सिम्टम का अगर डोमिनेंट कैरेक्टर ये है, कभी कभार डोमिनेंट सिम्टम के साथ एसोसिएटेड कैरेक्टर में ये भी होता है, तो उसमें हम डिसीव हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स में या डायबिटिक पेशेंट्स में। रिप्रोड्यूस विद मूवमेंट है, कांस्टेंट पेन फॉर आवर्स है, बहुत कम सेकंड के लिए हो रहा है, लोअर लिम्ब की तरफ जा रहा है, ये सारे फीचर नॉन कार्डियक की तरफ। और इस हिस्ट्री में ये 3 बड़े स्पेशल पेशेंट हैं। जैसे अब हमारे मरीज में डायबिटिक भी थी और फीमेल भी थी। ये लोग आपको डिसीव कर सकते हैं क्लिनिकली। दे मे बी प्रेजेंटिंग एज एटिपिकल एंड दे मे टर्न आउट टू बी डेफिनेट एसीएस। तो इन 3 किस्म के पेशेंट में बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जरा सा भी सस्पेशन है स्कीमिया का तो ईसीजी जरूर कर लेनी चाहिए। आपको ओल्ड एज में कभी कभार मिलेगा कि पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं, सिर्फ फॉल हुई, आप ईसीजी करेंगे इंफीरियर एमआई। सिमिलरली डायबिटिक पेशेंट में कभी मिलेगा सिर्फ एक स्वेटिंग सी हुई और सीने पे कुछ हल्का सा कुछ हो रहा है और आप ईसीजी नहीं करते और पता चला ईसीजी की गई तो उसमें एसिड एलिवेशन एमआई। सो दीज 3 थिंग्स, 3 सबसेट ऑफ पेशेंट शुड बी असेस्ड वेरी केयरफुली। अब हम ईसीजी को कवर करते हैं इन स्कीमिया कि ईसीजी चेंजेस क्या देखनी होती हैं। अच्छा, अब ईसीजी चेंजेस मल्टीपल हो सकती हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, हाइपर एक्यूट टी वेव इन्वर्जन, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे समझा दूं ईसीजी के हवाले से, जो बड़ा एक सिंपल पॉइंट है जो आपको स्कीमिया में असेस करना होता है। वो क्या है कि आप ये देखें कि ये QRS और ST सेगमेंट कहां मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड J पॉइंट। ये आपको क्या करना होता है, इसको पहले असेस करना है, तमाम लीड्स में ये देख लें कि ये कहां पे है J पॉइंट। फिर इस J पॉइंट को फर्दर असेस करना है किस अंदाज से कि इस J पॉइंट को अब कंपेयर करना है TP या PR सेगमेंट से, और उसी से आप फैसला कर लेते हैं कि ये एलिवेट है या डिप्रेस है। नहीं, ईसीजी में सिंपल करना क्या है कि आपको वो 12 लीड पूरी ईसीजी मौजूद है, उसमें आप हर लीड में जाके इन कॉम्प्लेक्सेस को देखें कि उनके ये एसटी सेगमेंट इन कंपैरिजन टू अलोंग विद जे पॉइंट और एसटी सेगमेंट ये मिलके, अगर आप इससे पिछले से कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो ये नीचे है या ऊपर है। बस ये टोटल स्कीमिया की ईसीजी चेंजेस, आपको जो एक्यूट स्कीमिया की चेंजेस है। और ये अगर आप हर ईसीजी में देखना शुरू कर दें तो आपकी आंखों को आदत हो जाएगी ये असेस करने की, और बड़ी आसानी से आप बता सकेंगे इस पेशेंट में क्लियर कट एसटी एलिवेशन है या नहीं है। जैसे मैं आपको अभी बाय एग्जांपल समझाता हूं। ये देखिए यहां पे ये जे पॉइंट, इस कंपैरिजन में हमने पीछे वाले उससे वो किया तो ये जे पॉइंट एलिवेट है विद एसटी। तो क्लियर कट इस पेशेंट में 3 से 4 मिलीमीटर की एसटी एलिवेशन नजर आ रही है। इसी तरह बिल्कुल डिप्रेशन भी नजर आती है वो ईसीजी में आपको, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ईसीजी आपने की 12 लीड की ईसीजी और हर ईसीजी में चेक कर लिया। अगर आपको टेरिटरीज पता है कि कौन सी टेरिटरी किस एरिया को डिनोट करती है तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई ये ईसीजी में एसटी एलिवेशन है या नहीं है। अब हम क्यों नहीं देखते, क्योंकि हम कभी ईसीजी करते ही नहीं है और इन बेसिक्स पे हमने कभी वर्क ही नहीं किया। या आप 10-15 ईसीजियां देखना शुरू करेंगे तो क्लियर कट एमआई तो बड़ी आसानी से पहचान। अब ये देखें, इसमें आप गौर करें है कि नहीं है। पूरी चेस्ट लीड्स, लैटरल लीड्स, इन सब में जे पॉइंट एलिवेट है और पिछले आप टीपी सेगमेंट से कंपेयर कर लें तो सारी एलिवेशन नजर आ रही है। तो क्लियर कट एमआई इवन जीपी डायग्नोज कर सकता है अगर उसको वो जे पॉइंट कॉन्सेप्ट, एसटी सेगमेंट और फिर उसको कंपेयर करना आता हो कि टीपी सेगमेंट से कैसे कंपेयर करना है। सिमिलरली डिप्रेशन है कि डिप्रेशन के लिए भी आपने वही जे पॉइंट देखना है। डिप्रेशन में कि 3 तरह के होते हैं, डाउन स्लोपिंग, अप स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल। करना वही है कि मल्टीपल लीड्स में ये देखना है। अच्छा, डिप्रेशन में ये होता है कि कभी कभार ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रीवियसली होती है तो सिम्टम से कोरिलेट करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसटी एलिवेशन में सिम्टम के साथ आपको मिल रही है। अब ये देखें यहां पे आप वही टीपी सेगमेंट, जे पॉइंट और एसटी डिप्रेशन। अब ये 12 लीड ईसीजी, इसमें बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं अगर गौर करें कि कहां जे पॉइंट पिछले टीपी सेगमेंट से एसटी सेगमेंट अलॉन्ग विद जे पॉइंट डिप्रेस्ड है। पूरी ईसीजी बड़ी आसानी से स्कैन करके बता सकते हैं कि कहां लीडों में कितने मिलीमीटर की एसटी डिप्रेशन है।
टी वेव नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होती हैं, इसमें बस ये अपराइट नहीं है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है टी इन्वर्जन है। इसको भी अगेन सिम्टम से कोरिलेट करना होता है। इसकी बहुत सारी कॉजेज हैं, ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। हाइपर एक्यूट टी वेव ये इनिशियल फेज है ऑफ एमआई। एसटी सेगमेंट एलिवेट होने से पहले टी वेव बढ़नी शुरू होती हैं। तो आपके सामने सामने किसी मरीज में पहले ईसीजी में टी वेव डाउन थी और अगली ईसीजीज में वो एम्पलीट्यूड में बढ़ती जा रही हैं, तो ये अगेन फेवर्स स्कीमिया। वरना टी वेव का बड़ा होना हाइपरकैलेमिया को भी कोरिलेट करता है। टी वेव इन्वर्जन जैसे ही हमने जिक्र किया कि पोस्ट एमआई और बहुत सी वजह हो सकती हैं। फिर क्यू वेव है। क्यू वेव बस ये होता है कि फर्स्ट डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स, अगर आपको वो 3 टेरिटरीज पता है कि एंटीरियर की, इंफीरियर की, पोस्टीरियर की और लैटरल की टेरिटरीज क्या क्या हैं, उन टेरिटरीज में अगर किसी भी 2 लीड्स में आपको क्यू वेव सिग्निफिकेंट मिल रही हैं, तो इसका मतलब है इस पेशेंट को ओल्ड एमआई हुआ हुआ है। क्यू क्या है कि फर्स्ट डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स देखना ईसीजी में। तो ये और इसकी सिग्निफिकेंस के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। एटलीस्ट 2 मिलीमीटर तक अगर इसकी डेप्थ है तो ये सिग्निफिकेंट। अब इस ईसीजी में गौर से देखें, इंफीरियर लीड्स क्या है, 2, 3 AVF। इन तीनों में क्यू वेव यानी फर्स्ट डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो नॉर्मली नहीं होता। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आप ये ईसीजी देखते हैं और ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी 2-3 AVF में क्यू वेव मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसको ओल्ड इंफीरियर वॉल एमआई हुआ है। अब हम वापस वही एल्गोरिदम जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसकी बुनियाद पे हम किसी भी चेस्ट पेन को हम इस तरह डिवाइड करते हैं, डेफिनेट एसीएस, पॉसिबल, स्टेबल और नॉन कार्डियक। अब हम अपने पेशेंट पे आते हैं। फीमेल थी, 45 ईयर्स की, हाफ एन आवर की चेस्ट बर्निंग थी, ईसीजी में कुछ चेंजेस थी। अब आपके लिहाज से ये क्या बनना चाहिए? इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये पेशेंट बनता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पॉसिबल, यानी हमें इसको फर्दर वर्कअप करने की जरूरत है। फर्दर वर्कअप क्या है? एडमिट करके ये देखें सिम्टम कैसे बिहेव कर रहे हैं और पेशेंट का मार्कर टाइमली मार्कर ये कि कम से कम 12 से 18 घंटे बाद इसका ट्रोपोनिन होना चाहिए। पेशेंट को वही किया गया, इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई, सिम्टम रिलीफ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ही हो गए। इसके जो ट्रोपोनिन किए गए वो दोनों सेट्स नेगेटिव थे। स्ट्रेस टेस्ट किया गया, थर्ड डे फॉर स्कीमिया एट 10 मिनट्स नेगेटिव निकला। इसका मतलब है कि एक एसीएस सस्पेक्टेड पेशेंट, लेकिन वर्कअप के बाद क्या हुआ कि ये कोई इसमें सिग्निफिकेंट स्किमिक चीज नहीं निकली, तो हमारा डिस्चार्ज डायग्नोसिस पॉसिबल एसीएस या नॉन कार्डियक चेस्ट डिस्कम्फर्ट। लेकिन हम चले जरूर कि चेस्ट पेन की बुनियाद पे हमने इसको असेस किया। केस 3, 45 years male smoker with 3 hours of severe substernal chest discomfort। अब देखें यहां पे हिस्ट्री ही ये गाइड कर रही है कि ये शायद डेफिनेट लग रहा है। जब डेफिनेट हिस्ट्री से ही लग रहा है तो ईसीजी होना लाजमी है कि इसकी ईसीजी हमें लाजमी करनी चाहिए। ईसीजी की अब आप गौर से ईसीजी में वही जे पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखें। 2-3 AVF में जे पॉइंट एलिवेटेड है और एसटी एलिवेट हुई भी है। तो इस पेशेंट में क्लियर कट आपने ईसीजी करने की वजह से इसकी एक मेजर डायग्नोसिस बना ली और इस टिपिकल पेन के साथ आपने इसको फौरी तौर पे टर्शरी केयर में रेफर कर दिया और पेशेंट मैनेजमेंट हो गई और बढ़ गया। और ये आप सिर्फ सिम्टम लेके बैठे रहते, ईसीजी ना करते और ये आइडेंटिफाई ना करते एसटी एलिवेशन, तो ये पेशेंट शायद इवन सडन डेथ भी हो सकती थी इस पेशेंट की। सिर्फ एक ईसीजी ने चीजों को एवेलुएट करा लिया। चौथा केस, 65 years male stable angina CCS2 for last 3 years experiencing nocturnal chest tightness for last 1 week with normal resting ECG and troponin on ER visit. His ECG done last night during symptoms showed, यानी ECG आपको वो मिल गई है जो सिम्टम के दौरान हुई थी, तो उसको अगर हम देखें तो क्या एसटी एलिवेशंस आ रही थी। तो उन टिपिकल सिम्टम के साथ जब आपने इस ECG को कोरिलेट किया तो क्लियर कट हो गया कि इस पेशेंट को अब स्टेबल एंजाइना से ये कन्वर्ट हो रहा है अनस्टेबल एंजाइना में। अगर ये ईसीजी टाइमली उस वक्त नहीं की जाती तो यू मे हैव मिस्ड दिस पेशेंट। और इसमें कुछ भी नहीं है, वही जे पॉइंट नीचे है, टेकीकार्डिया है और पूरी जनरलाइज एसटी डिप्रेशंस आई हुई हैं। तो इस बुनियाद पे बहुत ज़रूरी है हमें एक्यूट चेस्ट पेन एवेलुएट करते हुए ये फैसला करना कि हम क्या डील कर रहे हैं, डेफिनेट एसीएस, पॉसिबल एसीएस, स्टेबल एंजाइना या नॉन कार्डियक। इन कंक्लूजन,
Dealing ACS in ER requires combining following 3 factors for diagnosis and management. और इन तीनों चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। हम जाते हैं, देखते हैं कि हमें ECG चेंजेस बहुत अच्छी आनी चाहिए। देखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए होते हैं। अगर आप एक अच्छी हिस्ट्री ले पाते हैं तो आप 70-80% ऑफ द टाइम डेफिनेट ACS पिक कर लेते हैं। तो अच्छी हिस्ट्री लेके फिर आपको थोड़ी बहुत ECG स्किल्स भी आती हो तो ECG कर लें। अगर नहीं भी आती हैं, सिम्टम्स आप समझ रहे हैं कि डेफिनेट है, तो ECG ज़रूर कर लें। कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो एवोल्यूशन में फर्दर बेनिफिट देंगी। फिर मार्कर हमेशा टाइम के हिसाब से किए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हर का पेशेंट का मार्कर कर लेना विदाउट असेसिंग एग्जैक्ट सिम्टम एंड टाइम, इट्स नॉट राइट अप्रोच कि नेगेटिविटी पे आपने उसको नॉन कार्डियक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा टाइम ये देखें कि सिम्टम का सिवियरेस्ट एपिसोड कब हुआ और फिर उसके हिसाब से टाइम करें कि ये वाकई ये मार्कर जो मैंने किया है इसका नेगेटिव आना वाकई एक्सक्लूड कर रहा है। अगर नहीं तो क्या फर्दर मुझे सेकंड सेट की ज़रूरत है या नहीं है। तो एक्यूट चेस्ट पेन एवेल्युएशन में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सुनने का।